कल सुबह हमने याचिका डाली थी जो हमने फर्स्ट प्यूनी जज के कोर्ट में मेंशन किया था और हमने यही चाहा था कि ये याचिका की सुनवाई होनी चाहिए। तो उन्होंने हमारी बहस सुनी और कहा कि कल 10:30 बजे आप आना, हम आपको निर्णय सुना देंगे। इसका मतलब आज 10:30 बजे हमें उस कोर्ट में जाना था। तो कल शाम को लगभग 6:30-7 बजे हमें पता चला कि पांच जजेस की बैठक तय हो गई है और हमारी जो याचिका है वो 5 जजेस के आगे सुनी जाएगी। किस आधार पे ऑर्डर पास हुआ, किसने पास किया, इसकी हमें जानकारी नहीं थी क्योंकि कोई जुडिशियल ऑर्डर तो था नहीं। तो आज सुबह जब हम कोर्ट में गए तो हमने 7 सवाल कोर्ट के सामने रखे। वो अंग्रेजी में है तो मैं पढ़ दूंगा। पहला, अंडर आर्टिकल 145(3) of the Constitution, if it appears to the Supreme Court that a substantial question of law as to the interpretation of the Constitution arises in any case, then the minimum number of judges required to adjudicate on that issue is prescribed under the Constitution to be 5. मतलब कि अगर आर्टिकल 145(3) के अंतर्गत कोर्ट को ये मुनासिब लगे कि कानून की परिभाषा संविधान से जुड़ी हुई है और संविधान की परिभाषा को कोर्ट इंटरप्रेट करेगा, तो फिर वो सुनवाई 5 जजेस के आगे जाएगी। ये हुआ नहीं था क्योंकि ये कोर्ट के सामने मामला आया ही नहीं। ये तो आज सुबह आया, तो 5 जजेस को तो पहले ही रिफर हो गया। दूसरा, रेफरेंस टू 5 जजेस कैन ओनली बी मेड बाय जुडिशियल ऑर्डर। The rules of the Supreme Court do not allow the Chief Justice of India to pass an administrative order to refer a matter to five judges on the ground that a substantial question of law as to the interpretation of the Constitution arises in the case. 3. In the present case, there is no judicial order formulating the substantial question of law involving the interpretation of the Constitution, which is required to be adjudicated upon by a Constitution bench. 4. It is assumed, since the petitioners are not privy to any such order, that the concerned authority took the decision that the issues raised in the petition are required to be adjudicated upon by 5 distinguished judges after due application of mind on the issues raised in the petition. The petitioners are entitled to know the authority who on the administrative side passed an order to refer this matter to 5 distinguished judges. 5. If the authority happens to be the Chief Justice of India, against whom a motion of removal on the basis of certain articles of charge was filed and dismissed by the chairman in exercise of powers under Section 3(1)(b) of the Judges Inquiry Act 1968, then the petitioners are entitled to be informed of the order and contend that a copy of the order be furnished to the petitioners before any proceedings take place. 6. If that order has been passed by the Chief Justice of India, constituting the bench, then the petitioners seek to challenge the order on such grounds as the petitioners may deem fit. And last, it would be inappropriate for the petitioners to seek any indulgence of this court on the merits of the case till such time as such opportunity is afforded to the petitioners.
इसका लबो-लबाव ये है कि हम चाहते थे कि जो भी प्रशासनिक फैसला हुआ है, पहली बात ये है कि किसने किया है, किसने वो फैसला किया है कि ये याचिका 5 जजेस को जाएगी, ये हमें बताया जाए। अगर कोर्ट ने किया होता तो कोर्ट की वेबसाइट पे आ जाता है, क्योंकि कोर्ट का कोई ऐसा निर्णय नहीं था, तो हमने मांग की कि हमें बताया जाए किसने ये ऑर्डर पास किया है। अगर चीफ जस्टिस साहब ने पास किया है तो वो ऑर्डर की कॉपी हमें दी जाए, अगर किसी और ने पास किया है तो उस ऑर्डर की कॉपी हमें दी जाए। लेकिन हमारा संवैधानिक हक है कि हमें पता लगना चाहिए कि किसने ऐसा ऑर्डर पास किया है, और अगर ऐसे ऑर्डर की कॉपी हमें मिल जाती है तो निश्चित रूप से हम उस पर गौर विचार करके यह तय करेंगे कि उसको हम चैलेंज करेंगे या नहीं, और जब तक वो ऑर्डर नहीं मिलता तो हम बहस कैसे करें। ये बातें हमने सुप्रीम कोर्ट के सामने रखी। उन्होंने इस पे कोई फैसला नहीं किया। हमने मांग की, उन्होंने ये नहीं बताया कि हमें ऑर्डर देंगे, ये भी नहीं कहा हम नहीं देंगे। उन्होंने कहा कि आप मेरिट्स पे बहस कीजिए। तो हमने कहा कि मेरिट्स पे तभी बहस हो सकेगी जब हमें इस ऑर्डर की कॉपी मिलेगी, क्योंकि संविधान के अंतर्गत कोई ऐसा ऑर्डर हो नहीं सकता जिसको हम चैलेंज न कर पाएँ। अगर प्रेसिडेंट की इलेक्शन हो तो उसका ऑर्डर चैलेंज होता है, वाइस प्रेसिडेंट की इलेक्शन से ऑर्डर चैलेंज हो सकता है, प्रधानमंत्री या कैबिनेट का ऑर्डर हो तो वो चैलेंज हो सकता है, प्रशासन का कोई ऑर्डर हिंदुस्तान में किसी भी प्रशासन का हो तो वो ऑर्डर चैलेंज हो सकता है, अगर किसी ने कोई किसी के खिलाफ गलत काम किया हो वो ऑर्डर चैलेंज हो सकता है, अगर किसी पब्लिक अथॉरिटी ने कोई भी ऑर्डर पास किया हो वो ऑर्डर चैलेंज हो सकता है। कि कौन सा ऐसा ऑर्डर है हिंदुस्तान में वो नहीं चैलेंज हो सकता, और अगर कोई ऐसा ऑर्डर है तो हमें बताया जाए। अगर आप कहते हैं कि भाई अगर ये ऑर्डर जिसकी वजह से याचिका को 5 जजेस के सामने पेश किया गया, वो ऑर्डर अगर नहीं चैलेंज हो सकता तो वो भी हमें बता दें, ताकि हम कहें कि हिंदुस्तान में कोई एक ऐसा ऑर्डर है जो कभी चैलेंज नहीं हो सकता। ये मुद्दा सामने आया, और क्योंकि उन्होंने हमें ये नहीं बताया कि ऑर्डर देंगे या नहीं देंगे, तो हमने सोचा कि जब तक वो ऑर्डर नहीं मिलेगा तो निश्चित रूप से हम इस पे कैसे बहस कर सकते हैं पिटिशन पे, तो इसलिए हमने विड्रॉ कर लिया और ये मामला हुआ है। लेकिन एक बात मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ, और बड़ी संजीदगी के साथ रखना चाहता हूँ। हमें किसी के खिलाफ, किसी जज के खिलाफ, खास तौर में सुप्रीम कोर्ट न्यायाधीश के खिलाफ कोई पर्सनल शिकायत नहीं है। कांग्रेस पार्टी की कोई ऐसी मंशा नहीं है कि कोई पर्सनल शिकायत किसी के खिलाफ हो। हम केवल इतना चाहते हैं कि देखिए, 2 बातें स्पष्ट हैं। एक तो कोर्ट की जो समझ लीजिए जो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए उसकी इंडिपेंडेंस को कांग्रेस पार्टी प्रोटेक्ट करना चाहती है। हम किसी के खिलाफ कोई पर्सनल नहीं है। दूसरी बात, हम ये भी चाहते हैं कि कोर्ट की प्रणाली स्वच्छ हो, जुडिशियल प्रोसेसेस बिल्कुल स्वच्छ हो। वी वांट टू प्रोटेक्ट द डिग्निटी ऑफ द कोर्ट, वी वांट टू प्रोटेक्ट द इंडिपेंडेंस ऑफ द कोर्ट. That is one salutary principle. At the same time, we want to protect and ensure that the processes of the court are not polluted, that they are pure. ठीक है ना? तो कोई ऐसा मामला हमने नहीं उठाया जो पॉलिटिकल हो। ये एक हम पे आरोप सरकार लगा रही है कि हम किसी के खिलाफ हैं। जो भी मुद्दे हमने याचिका में और यो नोटिस ऑफ मोशन में रखे हैं चेयरमैन के सामने, जो उन्होंने खारिज कर दिए, वो किसी पॉलिटिक्स के साथ जुड़े नहीं हैं। कोर्ट में क्या हुआ उसके साथ जुड़े हुए हैं, क्या एफिडेविट किसी ने दिया उसके साथ जुड़े हुए हैं, क्या इन्वेस्टिगेशन
हो रही है उसके साथ जुड़े हों। इसमें कोई पॉलिटिक्स नहीं है, कोई एक मुद्दा ऐसा नहीं है जिसमें कोई पॉलिटिक्स हो। तो ये कोई सरकार जो हमारे ऊपर आरोप लगा रही है कि इसमें कोई पॉलिटिकल मामला है, मैं उनसे पूछना चाहता हूं कौन सा पॉलिटिकल मामला है जिस पे आप बात कर रहे हो। हम तो चाहते हैं कि अगर खुद न्यायाधीश ने कहा है कि मामला ठीक नहीं है, खुद कुछ लोगों ने ऐसी बातें की हैं जिससे शंका पैदा होती है, हमने नहीं की, वो उन लोगों ने की है जो कोर्ट में अपने मामले एक तरफिया कराना चाहते थे। हमने नहीं कोई ऐसी बात की, कोई ऐसी हमारी स्टेटमेंट इस याचिका में नहीं है जिसको कोई कह भी सके कि वो राजनीति से जुड़ी हुई है। कोई ऐसा आरोप लगा ही नहीं सकता। मैं चैलेंज करता हूं। सब मामले हैं वो कोर्ट के मामले हैं। कौन केस कहां जाता है, कैसे जाता है, क्यों केस किसी बेंच में जाते हैं, ये हमारा मामला नहीं है, ठीक है ना। और कैसे कोई कोर्ट फैसला करे और बेंच चेंज हो जाता है, वो हमारा मामला नहीं है। तो इसमें कोई राजनीतिक जो आलोचना हो रही है कि हम इसीलिए कर रहे हैं, ये मैं स्पष्ट तौर से कहना चाहता हूं कि कांग्रेस पार्टी को राजनीति से और इससे कोई ताल्लुक नहीं है। केवल हम चाहते हैं कि कोर्ट ऐसा अपना कार्यकाल चलाए जिससे ये स्पष्ट हो जाए कि कोर्ट इन मामलों में, पॉलिटिकल मामलों में कभी नहीं पड़ती, और जो कॉन्फिडेंस होना चाहिए सिस्टम को, वो कॉन्फिडेंस हमें होना चाहिए। और ये हम कॉन्फिडेंस जो हमने चाहा है, आरोप हमने कभी नहीं लगाया। ये आरोप जजेस के द्वारा ही आया, हमारे द्वारा नहीं आया। तो ये सबसे बड़ी बात है। और सबसे अहम बात है कि कौन सा ऐसा निर्णय है जो चैलेंज नहीं हो सकता। तो इसीलिए मैं स्पष्टीकरण देना चाहता था आपको कि इस दौर में अब तक ये कार्रवाई हुई है, और इसलिए हम चाहते हैं कि हमें जल्द से जल्द जो भी ऑर्डर हुआ है जिसके अंतर्गत और जिसकी वजह से मामला 5 जजेस को गया है, हमें उस ऑर्डर की कॉपी मिलनी चाहिए। नहीं, ऑर्डर हमें पहले तो पता चले कि कौन सा ऑर्डर है, किसने किया है। Attorney General referred to a judgment of the Supreme Court which said that the Chief Justice is the master of the roster, which is right. And I said that yes, the Chief Justice is the master of the roster, and nobody can challenge that. One second. Let me. 2 things he said. This is the first thing. I said that judgment that he is relying upon relates to judicial matters, doesn't relate to an administrative order. In fact, there is no judgment in the history of the Supreme Court where on the administrative side a matter has been referred to 5 judges and we don't know how that matter has been referred to 5 judges. That's number 1. Number 2, the Attorney General said that only 2 members of Parliament have challenged it. Unless 50% of members of Parliament challenged it, he had raised a preliminary objection, it should be dismissed. Now, that's a statement that needs to be stated to be rejected. These are the 2 reasons he gave. I get back to the same point which was raised in court today, which you kept on asking. Simple point is that everybody is well aware that this was passed, administrative order was passed by the Chief Justice. I'm not aware. I know you are acting as if you are not aware. No, I don't. What are you saying? Why do you make an allegation like that? Why are you making an allegation like that? You give me a copy of that order? That's not fair on your part. You're a journalist. Don't say, no, even they were not able to tell me. I asked them, please give me a copy of that order. Right? I don't know whether they are aware or not. Even I don't know that. But I, as a litigant, have the right to be made aware of what is that order. Who has passed it? In what circumstances? And what is the tenor of that order?
लुक एट इट दिस वे, आप इस तरफ वन सेकेंड इस दृष्टिकोण से देखिए कि कल हमने याचिका दी, आज 10:30 बजे कोर्ट नंबर 2 ने हमें बताना था क्या करना है, 6:30 बजे शाम को लिस्ट में आ जाता है कि ये तो मैटर 5 जजेस के आगे लगा हुआ है, ठीक है ना, और हमें मालूम नहीं किस आधार पे लगा। But my point is, sir, take it for a minute that it is Chief Justice of India. I don't know. Do you believe that he should recuse himself? No, I don't know. I must have. See, If he did, why should I answer that hypothetical question? I have a right to know. This is not an Official Secrets Act. yes, you rightly said. Under the Official Secret Act, it is not NSA, right? That it has to be supplied to me after a certain point in time. I don't know. It is an administrative order. All administrative orders are subject to challenge. This is not a judicial order. If it were a judicial order, we would have challenged it on judicial ground, on other grounds. But I must have a copy of the order. How can a citizen and how can a person be denied a copy of an order which is passed on the administrative side? That's a fundamental question that has to be answered. Now you are asking too many. No, sorry, later. Yes. Meenakshi. My question is a little removed from this. I wanted to ask you about all the criticism, political criticism that is emerging pertaining to, you have a position on the Vice President dismissing impeachment motion, but we have seen other political parties like the BJP and others come into the picture wherein they are criticizing the MP's decision pertaining to the office of the Vice President. No, it's not the office of the Vice President. He is the chairman. In his capacity as chairman under the Judges Inquiry Act, he has the right to admit or not admit the motion. Now, under what circumstances he has to admit and not admit, right? And whether he can, for the reasons that he has given, reject the admission is the subject matter on the merits of the case, right? Which we are ready to argue. But before we argue that, we want to know who passed this order. This is the first time in the history of the country, first time, that on the administrative side, somebody has passed the order to refer the matter to 5 judges. Now, we are entitled to know what's wrong in giving us the order. That's all that we are asking. So one small subpart, Gaurav Bhatia, in the Supreme Court was saying that Congress is not confident to argue its case on merits. No, whether it is confident or not confidence will happen only after we argue. If we filed the petition in the Supreme Court, it was because of lack of confidence, I guess. बस आप 2 वकीलों का ही कहना है कि आपकी सिग्नेचरी है राज्यसभा में जो महाभियोग मूव किया आप लोगों ने, और आप ही वहाँ पर केस लड़ रहे हैं, ठीक नहीं। नहीं, देखिए ऐसा है कि आज केस हम क्या लड़ रहे हैं? ये केस लड़ रहे हैं कि जो चेयरमैन साहब ने फैसला किया वो कानून के खिलाफ था। हमने कोई मेरिट्स पे वहाँ कोई नहीं आर्ग्यू कर रहा। Whether the chairman is entitled to reject the motion under the Constitution read with the Judges Inquiry Act is the ambit of the petition. उसमें कोई एलिगेशन की बात नहीं है। बट मैंने तो कोई एलिगेशन नहीं लगाया ना, मैंने तो कोई एलिगेशन पे बहस नहीं की ना। हमने तो उसकी चेयरमैन साहब की क्या जुरिस्डिक्शन है उस पर बहस हो रही है ना, और मेरा कोई इसमें पर्सनल इंटरेस्ट थोड़ी ना है। आई कैन अंडरस्टैंड कि मेरा कोई पर्सनल, मेरी अपनी प्रॉपर्टी हो, उस प्रॉपर्टी के मैं खुद बहस कर रहा हूँ जब, तो मेरा कोई इसमें पर्सनल इंटरेस्ट नहीं है। इंटरेस्ट ऑफ द रूल ऑफ लॉ and interest of the independence of the judiciary, interest in relation to the processes of the law being pure, are matters relating to the rule of law. So it is in that context that we are arguing the matter, not in any personal context. The questions are also Let him go. अगर ऑर्डर की कॉपी कोर्ट से नहीं मिलती है तो फिर आप लोगों के पास क्या विकल्प है? आपको ऑर्डर की कॉपी क्यों नहीं मिलेगी? मिलेगी, ये तो हमारा हक है, उसके बाद देखेंगे। अगर सेफ पैसेज ढूंढ रहे होते तो हम याचिका ही नहीं करते। हमने मेंशन किया था ना कल, आज उन्होंने निर्णय सुनाना था। पता नहीं सेफ पैसेज कौन कर रहा है कौन नहीं कर रहा है, ये तो खुदा ही जानता है। questions are also being raised that why only parliamentarians from Congress party go to the Supreme Court on this issue. There were
See, it is not a political issue, as I said to you again. Last time also at the press conference, I clarified that this is not politics. These are individual members' rights. So any individual member can challenge it. Again, AG should have realized that this is not parties don't challenge. Parties don't allege file a motion for removal of a judge. It's individual members under the Act. And I'm sure the Attorney General has read the Act very carefully. हाँ, ये तो एक प्रशासनिक निर्णय है, और जो प्रशासनिक निर्णय होते हैं किस आधार पे वो प्रशासनिक निर्णय लिया गया, ये हमारा हक है मालूम करने का, और हमें वो फैसला देना चाहिए कि किसने लिया, कैसे लिया, किस आधार पे लिया, क्योंकि हमारा हक है उसको चैलेंज करने का। अगर वो हमें निर्णय नहीं मिलता तो इसका मतलब हमें वो निर्णय नहीं देना चाहते और ना ही बताना चाहते हैं कि उसका आधार क्या है। जब तक वो नहीं होगा तो ऐसा लगेगा कि एक ऐसा ऑर्डर हिंदुस्तान के संविधान में है जो कभी चैलेंज नहीं हो सकता, जिसके खिलाफ हम याचिका डाल नहीं सकते। ये तो लोकतंत्र के खिलाफ होगा, ये रूल ऑफ लॉ के खिलाफ होगा, ये संवैधानिक एक मैं समझता हूँ कि आलोचना होगी संविधान की। है, हम कहते हैं कि वो मास्टर ऑफ द रोस्टर है। मैं कौन कहता हूं कि मास्टर ऑफ द रोस्टर नहीं है, कहते हैं कि है, लेकिन हमें बताएं तो सही किसने ऑर्डर ये पास किया है। Shouldn't he recuse? Okay, if you say 2, 3, 4, 5 are also part of it, then at least 6 should have decided the constitution of the bench. But that I'll only be able to say if I get a copy of the order. I can't say that otherwise. How am I to assume these things? There's no question of not providing the copy. This is not a document under the Official Secrets Act. No, that's a matter that should be left to your guesswork. Why not?